الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله ومن والاه وبعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کی توفیق، اس کے احسان اور اس کی مدد سے الحمدللہ تراویح کی نماز میں ہم نے آج قرآن مجید کو ختم کیا. میرے لیے خوشی اس لیے کہ میں 5 سال پہلے تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو ختم کیا تھا. اس کے بعد 5 سال میں مجھے قرآن مجید کو ختم کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمارے گاؤں کے اندر میں پڑھایا، وہاں پر قرآن ختم نہ کر سکا. الحمدللہ رب العالمین کے فضل سے 5 سال کے بعد آپ کے اس شہر میں مجھے قرآن مجید کو ختم کرنے کا موقع ملا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے اس تراویح کی نماز میں کہیں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں یا خطائیں ہوئی ہیں تو ہماری ان خطاؤں کو انسان ہونے کی حیثیت سے معاف فرما دے. اور جتنے بھی لوگ ہمارا ساتھ دیے، قرآن مجید کو سنیں، رب العالمین ان کے قرآن مجید کو سننے کو قبول فرما، ان کے کھڑ کر نماز پڑھنے کو قبول فرما، اور ان کے گھروں سے یہاں تک قربانی دے کر نماز کے لیے جو آئے ہیں، اے اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما. بھائیوں، ایک صحابی رسول، ان کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ یہ کہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے حق کو تلاش کرنے کے لیے، حق کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کون سے مذہب میں حق ہے، 25 سال اپنی زندگی کے لگا دیے. کتنے سال؟ اپنی زندگی کے 25 سال صرف حق کو تلاش کرنے کے لیے لگا دیے. 1 سال 2 سال 1 ماہ 2 ماہ نہیں، 25 سال اپنی زندگی کے لگا دیے. اور 60,000 کلومیٹر انہوں نے حق کو تلاش کرنے کے لیے سفر کیا. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ان کی پیدائش وہ جو گاؤں میں رہتے تھے، ایران کا ایک چھوٹا سا گاؤں اصفہان اس کو کہتے ہیں. کیا نام؟ اصفہان. جو چائے کی پتی وغیرہ میں بھی کیا ہے؟ اصفہان چائے کی پتی بول کر رہتی ہے. اصل میں کیا ہے؟ وہ چائے کی پتی اصفہان کی نہیں ہے. ایک میر اقبال حسین جو ہے حیدرآباد میں رہنے والے تھے، وہ ایران سے آئے تھے. کئی سال ان کے باپ دادا کی پیڑھی سے وہاں پر تھے. اس کے بعد وہ بنگلہ دیش سے چائے کی پتی منگا کر کیا ہے وہاں پر چائے کی تجارت اور چائے کا بیپار کیے. اس سے وہ اصفہان ہے. لیکن اصل اصفہان جو ہے ایران میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک گاؤں ہے. آئیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصل میں کیا ہے؟ مجوسی تھے. ان کے والد مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کھیتی دیا تھا، بہت زیادہ جنگلات ان کے پاس تھے اور کچھ جانور تھے. ان کے باپ اور حضرت سلمان کا کام کیا تھا؟ جیسے ہی صبح ہوتی تو ایک بہت بڑا آگ کا گڑھا جلانا اور اس کے اندر کیا ہے لکڑیوں کو پھینک دینا اور آگ میں کیا ہے جلا کر اس کی پوجا کرنا. اب 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو باپ تھے وہ روزانہ کھیت کو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کو کسی کام سے کھیت کو نہیں گئے، اپنے بچے کو کھیت کو بھیجے. کس کو؟ سلمان فارسی کو. جاؤ کھیت میں یہ کام ہے، اب جاؤ. کھیت کو جاتے تھے، درمیان میں راستے میں ایک چرچ، ایک کنیسہ دکھا ان کو. وہاں پر رکے اور ان کی جو عبادت تھی وہ لوگوں کی، وہ عبادت ان کو بہت زیادہ پسند آ گئی، دل کو بھالی گئی. بہت اچھی عبادت ہے ان لوگوں کی. کیا کیے؟ وہاں پر بیٹھ گئے. شام تک، جب تک ان کا کنیسہ، ان کا چرچ نہیں چھٹا، اس وقت تک اس چرچ کے اندر، اس کنیسہ کے اندر بیٹھ کر خوب عبادت کیے. جو عبادت کرتے تھے اس عبادت کو غور سے دیکھے. شام ہوئی، گھر کو واپس گئے. ان کے باپ نے پوچھا، بیٹا کیا کھیت کو گئے آپ؟ کام کر کے آئے؟ تو کہا، ابا جان میں کھیت کو نہیں گیا، درمیان میں جاتا تھا، راستے میں کنیسہ دکھا، چرچ دکھا. اس چرچ میں میں کیا ہے کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت میں بھی بڑھ گیا، مجھے اچھا لگا. باپ کو پریشانی شروع ہو گئی کہ میرا بیٹا کیا ہے اب دھیرے دھیرے بدلنے والا ہے. میرے بیٹے کو ہماری عبادت پسند نہیں آئی شاید،
मजूसी जो थे, आग की जो पूजा हम लोग करते हैं, ये पूजा मेरे बेटे को पसंद नहीं आई, इसीलिए मेरा बेटा क्या है, इनकी इबादत की तरफ माइल होता जा रहा है, चला जा रहा है। एक काम करना, क्या करना, अब कल से तू हरगिज घर के बाहर नहीं जाना। बंदाले बनकर घर के अंदर रख दिए उनके बाप। फिर भी कुछ भी हो जाए, एक मर्तबा उनके बाप गांव से बाहर चले गए तो हजरत सलमान फारसी जो रस्सियां निकालकर अपने घर से बाहर चले गए, जाकर उस कनीसा के अंदर, उस चर्च के अंदर बैठ गए। उन लोगों की इबादत उनको पसंद आ गई। उनका जो पादरी था बड़ा, जाकर बोले, आप लोगों की जो असल बुनियाद कहाँ है, जरा मुझे बताओ। आप लोगों की, देखिए, किसी को अगर तलाश करना है, किसी चीज में डीपली जाना है, किसी के बारे में मालूमात हासिल करना है, तो उसकी असल तक पहुंचना है, उसकी असल तक पहुंचना है। सलमान फारसी कहते हैं कि आपकी असल जो बुनियाद कहाँ है वो मुझे बोलो, कहां पर मिलती। तो उन्होंने कहा कि मुल्क शाम यानी सीरिया, मुल्क शाम में हमारी असल बुनियाद है, वहां पर हमारे बहुत सारे कनीसा हैं, बहुत सारे चर्च हैं। ठीक है, अगर कभी वक्त मिला तो मुझे जाने के लिए कैसा, मैं क्या करूं? तो बोले, अब नहीं, कभी इंशाल्लाह हम आपको भेजेंगे। ठीक है, एक मर्तबा मुल्क के शाम से काफिला आ गया, सलमान फारसी को मालूम हो गया, तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप मुझे उन लोगों के साथ भेज दीजिए। ठीक है, बात तय हो गई। हजरत सलमान फारसी उनके साथ गए। मुल्क के शाम में जाने के बाद वहां पर उनका जो पादरी था, उनका जो फादर था, उससे बात किए और उसके करीब हो गए। बहुत सारे लोग उस जो पादरी था, जो फादर था, उसकी बात मानते थे। हजरत सलमान फारसी देखे सारे लोगों का माल खजाना लाकर जमा करता था, अब नीचे जमीन के अंदर क्या है उसको जमा करता था। ये सलमान फारसी को पसंद नहीं आया कि भाई ये आदमी गलत कर रहा है। उसका इंतकाल हो गया। जैसे ही उसका इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के बाद सारे लोग उसकी मूर्ति बनाने लग गए। अब जो बनाते ना कब्र वगैरह, क्या बोले वो बनाते, वैसा बनाने लग गए। जैसे ही बनाए तो हजरत सलमान फारसी ने कहा, लोगों, जो काम आप कर रहे हो गलत है, जो काम आप कर रहे हो वो गलत है। इसलिए गलत है कि वो आदमी सही नहीं था, वो आदमी सही नहीं था। आपको कैसे मालूम? गांव वाले पूछे, तुम्हारे कैसे मालूम? तो बोले, आओ बताता हूं। बुला लेकर गए, सारे लोगों को बुलाकर जमीन में खड्डा खोद कर देखे तो जितने भी चांदी सोना लोगों से जमा किया था ना, जमीन के अंदर धसाया था। अब वो सारे के सारे लोग उसके मौत को, उसके मुर्दे को ऐसे ही छोड़ दिए। जो फादर मर गया था उसको ऐसे ही छोड़ दिए। बाद में अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को अब क्या करना, इनको मालूम करना कि मैं कौन सा मजहब सही है, जिस मजहब पर मैं फॉलो कर रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, मालूम नहीं हुआ। वहां से निकले, सीधे गए इराक में। कुछ लोग बोले कि इराक में बहुत अच्छी इबादत होती है, आप चले जाओ। इराक में एक गांव है मूसिल, वहां पर गए। वहां पर भी एक जो पादरी था उससे बोले कि मैं फलां फलां से जगह से आया हूं, मैं आपके क्या है सारे मालूमात हासिल करना चाहता हूं। ठीक है, वो आदमी उनसे करीब हो गया। करीब होकर दोनों इबादत करते गए, लोगों तक क्या है दीन का पैगाम पहुंचाते गए। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, वो आदमी जो फादर था बूढ़ा हो गया, मरने का वक्त करीब आ गया। अब सलमान फारसी बोले, अब तू चला गया तो फिर मैं किसके करीब होकर दीन को समझना। उसने कहा, ठीक है, एक काम कर, तू ईरान चले जा। ठीक है, वो उसकी बात सुनकर ईरान चले गए। फिर ईरान में गए, वैसे ही उस आदमी से करीब हो गए। वो आदमी जैसे ही करीब हो गया, वो भी बूढ़ा हो गया। तो बोले, अब मैं क्या करूं? तो एक काम कर, तू तुर्की चले जा, तुर्किस्तान यानी तुर्की, वहां पर चले जा। वहां पर जाकर एक फादर रहता है, उसके साथ करीब होकर उसकी इबादत कर। ठीक है, वैसे ही किए। जैसे ही करे, वो आदमी भी बूढ़ा हो गया, उसके करीब थे, मैं मुख्तसर करके बोल रहा हूं, उसके सोहबत में रहे। वो बूढ़ा हो गया, वो भी मर गया। जैसे ही मर गया, अब कहां पर जाना? तो वो बूढ़ा मरने से पहले एक बात बोल कर गया, एक काम कर, अब जो दीन पर हम चल रहे हैं ये सच्चा नहीं है। एक काम कर, एक नबी आने वाला है जो पहाड़ों वाले शहर में उतरने वाला है, दोनों पहाड़ों के दरमियान उतरने वाला है, और उस गांव के अंदर बहुत ज्यादा खजूर के बागात होंगे। उस बाग में, उन बागों के दरमियान, उन बागों वाले गांव में एक नबी आने वाला है जो लोगों से सदका नहीं लेता है बल्कि तोहफा लेता है, और उस पर सदका हराम है। ऐसा एक नबी आने वाला है। अब क्या करना, कैसे मालूम करना? मैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु परेशान, वो बूढ़ा मर गया, बोल दिया, मर गया, चला गया। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु उसी गांव के अंदर थे, मूसिल के
तरकी में थे बहुत दिन। उसके बाद एक काफिला आया, अरब वाले, एक काफिला अरब से आया जो सारे के सारे अरबी थे। उनसे अब हजरत सलमान फारसी उस गांव के अंदर रहते हुए कुछ जानवर को खरीद लिए थे, कुछ जानवर को पाल कर पोस कर अपने पास रख लिए थे। अब कहे कि एक काम करो, एक आदमी है जो अरब का रहने वाला है और वो क्या है पहाड़ों के दरमियान उतरने वाला है, क्या आप उसके मुतालिक जानते हो? तो लोग बोले हाँ हम अरबी हैं, हम जानते हैं वो मोहम्मद है, हम उसको जानते हैं। ठीक है, ऐसा क्या, एक काम करो, मेरे पास जितने जानवर है मैं आपको दे देता हूं, बदले में आप मुझे क्या करो, ले जाकर उस आदमी के पास छोड़ दो। बात तय हो गई, सौदा हो गया, बात तय हो गई। हजरत सलमान फारसी को लेकर गए, लेकर जाकर दरमियान में क्या किए, धोखा दिए, दरमियान में धोखा दिए। धोखा देकर बनु नजीर यानी यहूदियों का एक कबीला था बनु नजीर, वहां का एक ताजिर आदमी था, उस आदमी को हजरत सलमान फारसी को दे दिए, बेच दिए, यानी गुलाम बना दिया उस आदमी का। वो आदमी खरीद लिया। देखिए यहां पर हजरत सलमान फारसी का सारा सामान चला गया, उनके जानवर सारे चले गए और उनको गुलाम बनाकर उस आदमी के हवाले कर दिए। वो आदमी यहूदी था, अब उसको वो हजरत सलमान फारसी को अपने पास रख लिया। बहुत दिन उनके पास थे, उनके पास रहकर उसकी बात माने, उसकी इबादत करे। अब यहाँ पर यहूदी बन गए, ईसाई थे फिर यहूदी बन गए, यहूदी में भी पक्का बन गए। बन जाने के बाद उसी के दरमियान साथ में आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। अचानक एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अब आजमाए अल्लाह के नबी को, आप कौन हो, सारी बातचीत हो गई। बोले तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, क्योंकि यहाँ पर खजूर के बागात भी ज्यादा है, अरब में है, मदीने में आ गए आप। बात हुई, सब कुछ हुआ। अचानक एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ के पीछे मोहर था, मोहर यानी नबी होने की दलील यहाँ पर थी, पीठ में थी। फौरन अचानक एक मर्तबा उनका शक फट गया अल्लाह के नबी का, तो देख लिए कि हाँ यही है आदमी मोहम्मद, यही है मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई, आपसे बातचीत हो गई। कहने लगे मैं फलां फलां जगह से आया हूँ, मेरा असल में क्या है ईरान का रहने वाला हूँ, वहां गया, यहाँ गया, वहां गया, मुझे असल दीन मालूम होना है, मुझे असल दीन अब तक नहीं मालूम है। आप अब मुझे यकीन हो गया कि आप नबी हैं, आप नबी हैं। क्योंकि पहले क्या करा मालूम, हजरत सलमान फारसी क्या करे, पहले सदका दिए, नहीं लिए, अल्लाह के नबी नहीं लिए, आजमाए, तोहफातन दे रहा हूं अल्लाह के नबी ले लो, तो हाँ ठीक है ले लिए। हाँ मालूम हो गया कि यही मोहम्मद है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिए। तो कितने साल हुआ, इतने सारे अरसा मिलाकर 25 साल हुआ। कितना, 25 साल, 70,000 किलोमीटर उनके घर से लेकर मदीने तक आने तक कितने किलोमीटर हुआ, आए गए, उधर इधर, उधर इधर, उधर इधर, 70,000 किलोमीटर। तो मालूम क्या हुआ, अगर कोई हक को जानना चाहता है, सही मालूमात हासिल करना चाहता है, तो उसकी असल बुनियाद क्या है, उसकी असल बुनियाद क्या है, ये चीज असल कहां से आई वो मालूम करना। जब मालूम करेंगे तो सारी चीजें हमको मालूम होगी। नहीं उन्होंने बोले मैं उनकी बात मान लेता हूं, हमारे मौलाना बोले। अब अगर कोई बोलता है तो दलील के साथ बोलता है तो मान लो, नहीं वहां की बात लाया, यहां की बात लाया, मैं उनकी बात मानूंगा, नहीं चलता दीन के अंदर, दिन के अंदर नहीं चलता। जो भी बात आपको मानना है तो सही दलील के साथ मानो, सही दलील है कि नहीं है उठाकर देखो, हाँ ये कुरान के अंदर है, ये हदीस के अंदर है, तब जाकर मान लो, आपको तसल्ली हो जाएगी और जिस दीन के अंदर आप रहोगे मजबूती के साथ रहोगे। वरना फला पीर की बात मानोगे, फला बुजुर्ग की बात मानोगे, फला की दादा की बात मानोगे, दीन बराबर, दीन आप क्या है बराबर मुकम्मल उस पर दीन पर अमल नहीं कर सकोगे। देखिए सलमान फारसी, दीन की हक की कितनी तलाश थी उनको, कितनी फिक्र थी, वहां फिरे, यहां फिरे, वहां फिरे, आखिरकार मुसलमान बन गए। ईसाई थे तो उसमें भी पक्के थे, यहूदी बने तो उसमें भी पक्के और कट्टर बने। जब इस्लाम कबूल किए, जब इस्लाम कबूल किए तो इसमें भी एकदम कट्टर पक्के मुसलमान बन गए, पक्के मुसलमान बन गए, सहाबी रसूल बन गए। अगर हम भी बनना चाहें, किसी भी चीज को मालूम करना चाहें, तो उसकी खोज में जाना, अंदर तक जाना, ये चीज असल कहां से आई, वहां तक जाकर उसको लेने की कोशिश करना। रब्बुल आलमीन, एक मुख्तसर सा वाकया मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। इंशाअल्लाह कई सारे लोग क्या है सवाल कर रहे हैं कि सदकातुल फितर जो है कब देना, कितना देना, किसको देना, कि इंशाअल्लाह कल ताखरात है। आज ही बोलना सोचा था क्योंकि कल ताखरात है, बहुत सारे लोग आते हैं, सबको भी फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए कल इंशाअल्लाह सदकातुल फितर या ज़कातुल फितर कब देना, किसको देना, कितना देना,
اور کن کن لوگوں کو دینا, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.